अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. It's Monday today. हम पढ़ रहे हैं सूरह यासीन, आयत नंबर 62 से तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? बहुत ही ब्यूटीफुल जन्नत का जिक्र, और क्या सुनने मिलेगा जन्नत में? जन्नत में क्या कोई किसी की गीबत करेगा, बुराई करेगा, ताना मारेगा, झगड़ा करेगा, एनीथिंग लाइक दैट? नो। फिर क्या होगा? क्या सुनने मिलेगा जन्नत में? सलामती हो आप पर। सलामुन सलामुन, यस। फरिश्ते तो सलाम करेंगे ही, लेकिन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ऑल द नेमत, ऑल द मर्सी? और किसकी तरफ से सलाम आएगा? अल्लाह सुभान ताला। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान ताला हमें सलाम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको उनमें से कर दे इंशाअल्लाह। चले फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम देख चुके कि कयामत के दिन सूर फूका जाएगा तो सारी मखलूक खत्म हो जाएगी। दुनिया विल कम टू एन एंड, और फिर कयामत शुरू होगी। फिर दूसरा सूर फूका जाएगा तो तमाम मखलूक फिर से जिंदा हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से, एवरीबॉडी, है ना। और फिर हमने देखे थे कि कौन पछताएगा उस दिन? जो यकीन नहीं करते थे कयामत का, वो पछताने लगेंगे, है ना।
disbelievers کہ ہائے کس نے ہم کو اپنی نیند سے جگا دیا، اور ہائے افسوس اللہ کا وعدہ تو سچا ہو گیا اور اللہ کے رسولوں کی بات سچی ہو گئی. That means ہر ایک کو یہ بات پتا تو ضرور ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت کا، اور ہر ایک کو یہ بات پتا تو ضرور ہے کہ رسولوں نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے. تو جان بوجھ کر اس بات کو نظر انداز کرنا، اس کا کتنا بڑا خامیازہ بھگتنا پڑے گا. That means we'll have to pay a price for not listening. ابھی اس کو 1 منٹ کے لیے ایسے سوچئے کہ اگر سمجھو جو بھی ہے جو یقین نہیں کرتے، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اچھا اگر آپ سوچتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، حساب کتاب نہیں ہوگا، تو اور اگر ہو گیا تو کتنا بڑا نقصان ہے. اور اگر جیسا آپ لوگ کہتے ہو کہ نہیں ہوا وعدہ پورا اور نہیں آئی قیامت، نعوذ باللہ فار ایگزامپل، تو نقصان تو کچھ نہیں ہوگا نا. ہم دنیا میں اچھے ہی کام کر کے جائیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، قیامت سے ڈر کے، عذاب سے ڈر کے بچتے رہیں گے، اور نہیں آئی قیامت، نہیں ہوا حساب، تو ایٹ لیسٹ نقصان تو نہیں ہوگا. ہم نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری. لیکن اگر آ گئی اور بات سچی ہو گئی اور ہم نے نہیں مانے تھے اللہ کی بات، تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا. isn't it؟ اس لیے ایک مومن جو ہے ہر لحاظ سے، from every perspective, a مومن is always a winner. ہمیشہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اللہ کی بات مان کے اچھی زندگی گزارتا ہے، اچھا انسان بنتا ہے، اور اچھا اللہ کا بندہ بھی بنتا ہے. اور آخرت میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کو کیا دے دیا. اوکے، ناؤ 58 میں یہ تھا قولا من رب الرحیم، اور کیا تھا وہ قول؟ سلامن. اب ہم کیا کریں گے سلامن پر ہمیشہ؟ پوز کریں گے باجی. پاز کریں گے. کرتے تھے کہ اب تک؟ نہیں باجی. کون سی سپیڈ میں ہم بھاگتے ہیں تلاوت کرتے وقت؟ اچھا چلیے آج سپیڈ کی بھی بات کریں گے. یہ جو جس سپیڈ سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ کہیں ٹھہراؤ، نہ کہیں گننا، نہ کہیں اخفا. پتہ بھی ہے یہ سب ہے کیا؟ اخفا اور گننا اور اظہار اور ٹھہراؤ اور وقف، یہ کیا ہے؟ یہ تجوید کے رولز ہے، اور ہر ایک کے پیچھے بڑی حکمت بھی ہے. تب تک ہم صحیح قرآن نہیں پڑھ رہے اگر ہم نے اس طریقے سے قرآن کو نہیں پڑھا. تو انشاءاللہ کوشش ضرور کیجیے. سپیڈ کی بات کریں گے آج، اور وہ کون سی سپیڈ کی بات ہوگی؟ کہ پل صراط ہر ایک کو کراس کرنا ہے، اور اس پل صراط پر ہر ایک کی سپیڈ الگ ہوگی، اور وہ سپیڈ کس مطابق ہوگی؟ That we will see today. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کس نے قرآن کتنا فاسٹ پڑھا. ایک رمضان میں 5 قرآن پڑھ لیے اور 10 یاسین پڑھ لیے، پتہ نہیں کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کتنی سپیڈ سے پڑھے، کتنی بار پڑھے. دیکھیں گے آج کیا ہوگا پل صراط پر. اللہ اکبر. چلے پھر 59 میں فرمایا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے وَامْتَازُوا، سب الگ الگ ہو جاؤ، یا ایھا المجرمون، اے مجرموں، آج مومنوں سے الگ الگ ہو جاؤ، ایمان والوں سے. they will be separated. پل صراط پر بھی یہی ہوگا. then 60 علم آحد، اللہ تعالیٰ کیا پوچھتے 60 میں؟
کیا نہیں میں نے وعدہ لیا تھا تمہاری طرف سے اے بنی آدم؟ کیا تھا وعدہ اللہ کا؟ بتاؤ 60 میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ لیا بنی آدم سے؟ وعدے اللہ اس آیت نمبر 60 میں دیکھیے پلیز. وہ درخت کے پیچھے نہیں جانا نہیں تو جنت سے اتارے جائیں گے. جس کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ جواب دیجئے پلیز. آیت نمبر 60 سورہ یاسین پارہ نمبر 23. نہ نہیں تم عبادت شیطان کرو کی شیطان عبادت کرنا. ویری گڈ. ون ایٹ اے ٹائم پلیز. اللہ تعالیٰ نے تو بہت سے وعدے لیے ہوئے ہیں نا، تو ابھی ہم تو پارہ پڑھ رہے 23 سورہ ہے یاسین اور آیت ہے 60. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پرومس کی بات کی اس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اے بنی آدم کیا نہیں وعدہ لیا تھا ہم نے تم سے کہ نہیں تم عبادت کرنا شیطان کی. یہ ہوم ورک تھا آپ کا. انہو کیونکہ وہ شیطان لکم تمہارے لیے عدو مبین ہے. کون ہے وہ شیطان؟ وہ کھلا دشمن ہے تمہارا، اسی لیے تم اس کی عبادت نہیں کرنا. تو پھر کیا کرنا؟ ڈونٹ بتا دیا، ڈونٹ ورشپ شیطان. دین واٹ ٹو ڈو وہ بھی بتا دیا 61 میں. وَأَنِ اعْبُدُونِي اور یہ کہ تم عبادت کرنا صرف میری. وَأَنِ اعْبُدُونِي اور یہ کہ تم عبادت کرنا صرف میری. worship only me. And who is me? اللہ سبحانہ وتعالی. ہاذا یہی ہے صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ، مضبوط سچا راستہ. سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں کسی کی عبادت نہیں کروں، صرف اللہ کی اور تجھی سے مدد مانگتی ہوں. سنا؟ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتی رانگ آنسر. سنا؟ سنا تبسم. جی باجی چلا ہم کو سیدھا راستہ. یا رانگ اللہ آنسر. ہاں انجم بولو. میں صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھی سے مدد مانگتی ہوں. رانگ آنسر. دیکھیے روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہم لوگ. پروین. یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ یہ ہے نہیں میں نے جو آیت پڑھی اس کا میننگ پوچھ رہی ہوں نا آپ کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. امی آپ بتائیں. جی میں بولتی ہوں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یس یہ صحیح جواب ہے. کیا فرق پڑا؟ کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں، تو رانگ آنسر ہے. ایاک نعبد، ایا یعنی صرف، ک یعنی تیری. دیکھیں ایسے کیسے ہم کچھ بھی بول سکتے. ایا یعنی صرف، ک یعنی تیری یعنی اللہ کی، صرف اللہ کی، صرف تیری. نعبد نہ یعنی کیا؟ ہم. نہ یعنی ہم. عبدو عبادت کرتے ہیں. یا اللہ صرف اور صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. Now you know what is the right answer. ایک ورڈ سے بھی ہم لوگ غلطی نہیں کر سکتے، تو پھر رانگ ہو گیا نا. اور پھر ایاک نستعین صرف اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو ہم اور میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. دیکھو، اور ہر روز ہم سورہ فاتحہ پڑھتے. پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. اگر آپ کسی سے کہو گے کہ میں قرآن کلاس جا رہی ہوں 5 سال سے، 10 سال سے، 4 سال سے، اور اگر سورہ فاتحہ میں ہم مسٹیک کر رہے ہیں، then we have to check ourselves.
کہ ہم کیا کر جی رہے ہیں. کیا اکبر جی کیا غلطی ہوئی؟ جیسے میں نے ایسا کہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی نہیں لگانا ہے ہم کو. نہیں ہی لگانا ہے خدیجہ، تم نے ہاں ایسے تو میں نے جواب دیا. جی میں نے ایسے ہی بولا تھا. میرا ہم بولا تیری تھا شاید، مجھے نا ہم سنا ہی نہیں دیا جب تک کہ ابھی امی جی نہیں بول رہی، تب نہیں تک ہاں میں یاد ہے ہاں بولے جی تھے نا. ہاں ہاں میں نے بولی تھی، صحیح صحیح ہے. تو ابھی ٹھیک ہے. فرق کس چیز کا ہے خدیجہ؟ ہم ہیں جی ہاں نا جمع کا صحیح ہے، صحیح بات ہے. تو پھر فرق پڑتا ہے کہ نہیں میں اور ہم میں؟ ہاں بہت صحیح. آپ کو پتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ دعا میں صرف اپنے لیے نہیں کرتی. جب میں اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہوں، میرے پورے گھر والوں کے لیے میں اللہ سے ہدایت مانگتی ہوں، کیونکہ میری ذمہ داری ہے. اور جب امام صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں تو امام صاحب پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ہم سب یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں نا، اور یہ نماز صرف تیرے لیے، اور ہدایت بھی مانگی سب کے لیے. تو مسلم مومن کی ناٹ بی سیلفش، میں نہیں ہوتا ہے، ہم ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. میں نے یہ آپ سے کوشچن اس لیے کیا کیونکہ یہاں پر عبادت کی بات آئی، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے وعدہ لیا تم سے کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا. ابھی آپ لوگ کا ہوم ورک آتا ہے، بتائیے مجھے کہ شیطان کی عبادت کیوں نہیں کرنا. اللہ نے کیا فرمایا؟ شیطان کی عبادت کیوں نہیں کرنا؟ نمبر 1 آنسر. کیونکہ بولو وہ سنا، ہمارا ہے باجی، وہ ہمارا بولو الہ نہیں. کیونکہ وہ ہمارا الہ نہیں ہے. اچھا، آیت نمبر 60 میں کیا جواب دیا اللہ نے کہ کیوں اس کی عبادت نہیں کرنا؟ کیونکہ وہ کیونکہ تمہارا وہ دشمن ہے. نہیں سمجھ میں آیا، مقدسہ پھر سے بولو. وہ ہمارا کھلا دشمن ہے باجی، اور ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. ویری گڈ. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اور سورہ کا جواب بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ ہمارا الہ نہیں ہے، وہ ہمارا معبود نہیں ہے، وہ ہمارا خالق بھی نہیں ہے. کیا اس نے ہم کو پیدا کیا؟ نہیں. کیا وہ ہمارا رب ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے؟ نہیں. کیا وہ عبادت کے لائق ہے؟ نہیں. کیا وہ ہمارے ساتھ مہربانیاں کرتا ہے؟ نہیں. کیا وہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ نہیں. کیا وہ رازق ہے؟ نہیں. کیا وہ غفور ہے؟ نہیں. تو پھر وہ کون ہے؟ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. فل سٹاپ. کس نے بتا دیا؟ اللہ نے بتا دیا وہ کھلا دشمن ہے تو ہے. اچھا دشمن، اب دیکھیں گے وہ دشمن کیوں ہے. ابھی آپ لوگ ہی بتائیے، آپ نے ہوم ورک کیا ہے نا، بتائیے وہ ہمارا دشمن کیوں ہے؟ باجی میں بتاؤں، ہاں بتائیے. کیونکہ اسے جنت سے نکالا گیا تھا آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ، یعنی انسانوں کی وجہ سے. تو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان اب جنت میں جائے، اور جنت کے راستے میں رکا ہوا ہے. اوکے ویری گڈ. اور باجی اس نے وعدہ کیا کہ میں آدم کے چیلنج کیا اللہ کو کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، ان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، جہنم کی ویری طرف. گڈ ویری گڈ. یعنی ہم انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ابلیس جو ہے، پہلے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی وجہ سے ابلیس کی نافرمانی سامنے آ گئی. اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کرے. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. یہ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیمی سجدہ تھا. اونلی آؤٹ آف ریسپیکٹ، ناٹ آؤٹ آف ورشپ. تو تمام فرشتوں نے کیا، سوائے کس کے؟ سوائے ابلیس کے. تو ابھی دیکھیے اس دن اس کی نافرمانی کھل گئی. اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو. تو اس کی غلطی کیا ہوئی کہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے ابلیس نے اللہ کی عبادت کتنے سالوں تک کی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟
इब्लिस ने अल्लाह की इबादत कितने सालों तक की है? ऑलमोस्ट 8 लाख ईयर्स तक, 8 लाख सालों तक ऐसे हमें मिलता है, अल्लाह नोज बेटर। इतने लाखों सालों तक इब्लिस ने अल्लाह की इबादत की, लेकिन एक दिन उसने क्या कर दिया? अल्लाह की एक बात नहीं मानी, तो वो क्या बन गया? इब्लिस से बन गया शैतान। शैतान का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। रजीम धुतकारा हुआ बाजी। रजीम धुतकारा हुआ, द कर्स्ड वन, अल्लाह की फिटकार है उस पर, और वो जहन्नम में सबसे पहले जाने वाला है, और वो जहन्नम की आग में जलेगा क्योंकि उसने अल्लाह की नाफरमानी की। उस दिन क्या सिर्फ इब्लिस से ही गलती हुई थी? आदम अलैहिस्सलाम से भी एक गलती हो गई थी, और माँ हवा से भी। फिर फर्क क्या पड़ा? दोनों की गलती में फर्क क्या पड़ा? रेपेंट का बाजी, तौबा का। तौबा का फर्क पड़ा, और माफी मांगी। माफी मांगी, और ईगो प्रॉब्लम नहीं था, उसको ईगो था बाजी। आजीजी और तकब्बुर, शैतान ने तकब्बुर किया, उन्होंने आजीजी की। सबसे बड़ी बात कि आप सबके जवाब सही है बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे की बात जो हमको समझनी है, क्योंकि हमें शैतान को फॉलो नहीं करना है। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, और उनको किसने बहकाया था? इब्लिस ने। इब्लिस ने। लेकिन क्या आदम अलैहिस्सलाम ने एक बार भी इल्जाम लगाया अल्लाह के सामने इब्लिस पर? नहीं, खुद की एक बार गलती भी मान- बोला? आदम अलैहिस्सलाम ने एक बार भी अपनी गलती का एक्सक्यूज नहीं दिया, अपनी गलती की उन्होंने कोई सफाई पेश नहीं की, और ब्लेम नहीं किया शैतान को, इब्लिस को, और अपनी गलती को मान लिया, और अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह ताला मुझे तौबा सिखाइए, मुझे माफी मांगनी है, आप मुझे बताइए मैं कैसे आपसे माफी मांगू ताकि आप राजी हो जाए, आप माफ कर दो। तो अल्लाह ने सिखा दी उनको आयत, दुआ। कौन सी आयत नाजिल हुई? रब्बना ज़लमना। वेरी गुड, सूर्य आराफ की आयत रब्बना ज़लमना, पूरी पढ़ लो। खदीजा आप पढ़ लो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जी, और शैतान का क्या हुआ? शैतान ने अल्लाह की बात नहीं मानी, सजदा नहीं किया, यानी अल्लाह की नाफरमानी की। इसके बाद उसने तकब्बुर भी किया, उसकी ईगो प्रॉब्लम हो गई। अब वो किसको ब्लेम करने लगा? इल्जाम किस पर लगाने लगा? अल्लाह पर। अल्लाह पर। क्या लगाया उसने इल्जाम? बोले फहीमा आंटी। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से, मैं उसको क्यों सिजदा करूं? एग्जैक्टली। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से, मैं उससे बेहतर हूं, मैं उसको सजदा क्यों करूं? तो ये थे उसके ब्लेम गेम्स, और ये थी उसकी नाफरमानी, और ये था उसका तकब्बुर, ईगो। ठीक है। ये सब के बाद, ये सब के बाद जब अल्लाह ताला उससे नाराज हुए, गजबनाक हुए, तो तभी भी क्या शैतान को ये तौफीक हुई कि वो तौबा कर ले, माफी मांग ले? नहीं। क्या जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने माफी मांग ली तो अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, अगर इब्लीस भी माफी मांगता तो क्या उसे माफ नहीं करते? करते, लेकिन नहीं यस, मांगी। दिस इज द मेन थिंग वी हैव टू लर्न। कितने सारे मॉरल्स हमने सीखे, जल्दी 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 बताओ कि हमें आदम अलैहिस्सलाम से क्या क्या सीखना है और शैतान को कैसे कॉपी नहीं करना है। नंबर 1,
आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया गया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने इल्म ले लिया। हमको भी इल्म दिया गया है, क्या हम लेते? नहीं लेते, उसमें हम पिक एंड चूज करते हैं। फिर आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने किसी पे भी इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने जल्दी से माफी मांग ली। तो हमें क्या सीखना है चांद आंटी, कि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें तौबा कर ले, माफी मांग ले अल्लाह से, किसी पर इल्जाम नहीं लगाना है, नो ब्लेम गेम। और हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी है कि वो जरूर हमें माफ कर देगा, वो गफूरुर रहीम है। और हमें तकब्बुर नहीं करना है बल्कि आजिज बनना है। यस, तो अल्लाह ने फरमा दिया कि ये शैतान ने फिर अल्लाह ताला को प्रॉमिस किया, अल्लाह को चैलेंज किया कि अल्लाह अब तू मुझे मोहलत दे कि मैं ये आदम की औलाद को बहकाऊं, उसको क्या करूं, सीधे रास्ते से हटा दूं। अब देखिए ये उसकी दुश्मनी कैसे निभा रहा है हमसे। हमारी दुश्मनी किससे होती है? जो हमारा दुश्मन होता है। ये दुश्मनी किससे निभा रहा है? पूरे बनी आदम से, अंटिल द लास्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ। जो आखिरी इंसान रहेगा, अल्लाह ने उसको मोहलत भी दी है, अल्लाह ने उसको एज भी इतनी दी। दुनिया में सबसे ज्यादा एज किसकी है? इब्लीस की। तो सब वो आखिर तक, आखिरी इंसान तक के उसने अल्लाह को चैलेंज किया है, मैं किससे हटाऊंगा? अब बताओ किससे हटाऊंगा? कौन से रास्ते से? सीधे कौन से रास्ते? सीधे रास्ते से हटाता रहूंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया कि अगर तुम उसकी इबादत करोगे तो उसके लिए तुम उसके काम में उसकी मदद करोगे, यानी तुम उसका काम आसान कर दोगे। और कब तुम उससे बच जाओगे? 61 में क्या फरमाया? वह अनि अबुदूनी, और तुम मेरी इबादत करते रहो, मेरे बंदे बन जाओ, मेरी बात मानो। अगर शैतान की बात मानोगे तो वो तो तुम्हें सिराते मुस्तकीम से हटा देगा। चाहे तुम रोज नमाज पढ़ो और रोज अल्लाह से हिदायत मांगो, लेकिन अगर साथ साथ में शैतान की भी इबादत कर रहे हो तो फिर वो तो तुम्हें सीधे रास्ते से हटा कर ही रहेगा, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा। कैसे करता है शैतान, बताओ? या शैतान की इबादत कैसे होती है, किसी को पता है? जब हम खाना खाए और बिस्मिल्लाह नहीं बोले तो वो शैतान का खाना हो गया। ओके। खड़े रह के खाना, खड़े रह के पानी पीना। ओके। नमाज पढ़ रहे लेकिन कोई आ गया तो फिर हमारे सजदे और रुकू लंबे लंबे हो गए, तो ये फिर रियाकारी, शो दिखावा। ऑफ। ये दिखावा हो गया, मुनाफिकत हो गई ना, जो बाजू शैतान हमसे करवाता है। बच्चे हाँ फईमान। बच्चे जैसा खाना खिलाते वक्त बच्चों को टीवी चाहिए, मोबाइल हाथ में चाहिए, ये सब शैतान के खेल है ये। अच्छा, जी मैं बोल रही ओके। हूँ कि हाँ सीधे बोलिए रास्ते से वो इंसान को सीधे रास्ते से हटा देता है, मतलब गलत रास्ते पे चला देता है। इसका मतलब ये होता है कि वो तुमको है ना, शैतान के ट्रिक्स क्या है, शैतान के फंदे क्या है, वो तुम्हें कैसे सीधे रास्ते से हटाता है। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, हम देखेंगे कि which are the 5 golden tricks of shaitan. Can you read this for me, Chand aunty? जी हाँ। Number 1, you are young, have some fun. 2, हाँ, keep इसको एक्सप्लेन करो। डोंट रन, डोंट रन। ओके ओके। यानी जवान हो तो आप पिक्चरों में जाओ, शॉपिंग जाओ, नमाज देखेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे वो बहकाता है। यानी बराबर, यानी मौज जवानों मजा को करो। कहता है, हाँ जवानों को कहता है अभी तो तुम जवान हो, मस्ती कर लो, एंजॉय कर लो, इबादत बाद में कर लेंगे। वेरी गुड। नंबर 2, कीप एंजॉइंग, लाइफ इज लॉन्ग, यू कैन रिपेंट लेटर। यानी अभी गुनाह करते हो, कर लो, झूठ बोल लो, थोड़ा इधर उधर कर लो, फिर बाद में बूढ़े होंगे ना तब तौबा कर लेना। हाँ शैतान हमको क्या उम्मीद दिलाता है कि अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन शैतान को क्या मालूम हमारी जिंदगी कितनी है, वो तो सिर्फ किसको मालूम है? अल्लाह सुभान ताला।
ओनली अल्लाह नोज। तो शैतान हमको इस तरह बहकाता है कि अभी आज तो कर लेना मस्ती, कल कर लेना तौबा और कल कर लेना इबादत, राइट। तो इस तरह वो हमें ट्रिक करता है। नंबर 3, Don't remain cool during anger. Patience is for cowards. यानी गुस्से हो जाओ, बहस करो, ये तो जो शांत रहते, खामोश रहते, वो तो कावर्ड है। एक्चुअली इट इज द अदर वे राउंड। अपना दीन सिखाता है कि खामोश रहो, गुस्सा छोड़ दो। तो शैतान हमें ये सिखाता है कि गुस्से के वक्त बिल्कुल ठंडा नहीं रहना है, गुस्से पे काबू नहीं करना है, सबर नहीं करना है। सबर तो बुज़दिल करते हैं, सबर तो कौन करते हैं? मजलूम करते हैं। तुम्हें सबर करने की क्या जरूरत है? तो शैतान हमें गुस्सा करने का हुक्म देता है और बिल्कुल उसमें कोई किसी को भी चांस नहीं देता। ओके, नंबर 4, Everybody is doing it. Don't be worried. Spice up your life. यानी जो लोग, जी आप बोलिए। शैतान सेज मेजॉरिटी को फॉलो करो, जो सब लोग कर रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है उसी को करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अपनी लाइफ में मजे करो, एंजॉय करो। और कुरान हमें क्या सिखाता है? दीन की तरफ चलो, हमारे लिए हमारा घर ही काफी है। इवन इफ यू आर नॉट मेजॉरिटी, हमें किसको फॉलो करने को सिखाया गया है? सूरह फातिहा में सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाओ, सुन्नतों को फॉलो करो, सहाबा इकराम को, नेक लोगों को और सालिहीन को, सच्चे लोगों को, शुहदा को, उनको फॉलो करो, ना कि दुनिया के ट्रेंड्स को फॉलो करो। ओके, तो शैतान हमें इस तरह मिसलीड करता है। नंबर 5, Oh, you have too many sins. Allah will not forgive you. Keep doing sins. ये भी एकदम खिलाफ है अपने दीन से, क्योंकि अल्लाह तो कहता है कि हर वक्त तुम तौबा करो, जब तक हम जिंदा है तौबा के दरवाजे खुले हैं। और ये बहकाते जाता है ताकि हम और गुनाह करें। शैतान हमारे दिलों में वसवसे डालता है कि तुम तो इतने गुनहगार हो, अभी एक नमाज पढ़ने से क्या होएगा तुम्हारा? तुमने इतने गुनाह किए हो, एक तौबा से क्या होगा तुम्हारा? तो वो हमें इस तरफ आने ही नहीं देता। वो कहता है कि अभी और भी कर ले, क्या होगा? तू कौन सी सुधरने वाली है, या तुझे कौन सी माफी मिलने वाली है? अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरह शैतान तो हमें बहकाता है, लेकिन ये बताइए कैसे बहकाता है? क्या वो सामने आता है? क्या किसी ने शैतान को देखा है? डू यू नो वेर इज शैतान? हु इज शैतान? हैव यू एवर सीन शैतान? एनीबडी? नहीं बाजी, हमारे नफ्स, हमारे ख्वाहिशात भी। ये देखो शैतान कहाँ है, ये पढ़ो सुरैया। हदीस मफ़हूम है, शैतान आदमी के अंदर खून की तरह गर्दिश करता है। एग्जैक्टली अब शैतान कहाँ है? शैतान हमारे अंदर, मेरे अंदर खून की तरह गर्दिश करता है। उसको एक्सेस है पूरी बॉडी में, मेरे दिमाग में भी, सिवाय मेरे दिल की। उसको हर जगह एक्सेस है। वो सीने पे जाके नॉक नॉक करता है। कौन सी सूरा में हम पढ़े थे? कौन सी सूरा में हम पढ़े थे? नास में बाजी। सूरह नास में। वेरी गुड। सूरह नास में हम क्या पढ़े थे? वसवासिल खन्नास, वो वसवसे डालता है और वो खन्नास है, डालता है और छुप जाता है। तो वो हमारे खून में, हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में बसता है, और जहां हमारी कमजोरी नजर आती है वहां पर वो हमारा बॉस बन जाता है, और फिर हम उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि हमें भी तो मजा आता है ना, हमारी भी तो डिजायर्स है, ख्वाहिशात है। तो हमारा दिल चाहता है कि छोड़ दो अभी ये, थोड़ी देर और थोड़ी देर मजा कर लो।
फिर बाद में कल वापस पढ़ लेंगे हम, एक दिन नहीं पढ़े तो क्या हो गया। तो ये शैतान हमारे अंदर ही हमें वसवसे डालता है, और शैतान कोई नहीं बल्कि हमारी अपनी नफ्स को वो बहकाते रहता है और उसी के अंदर वसवसे डालते रहता है। दैट मीन्स शैतान इंस्पायर्स, कॉन्स्पायर्स अगेंस्ट अस, और हमारी कमजोरियों को वो अच्छे से जानता है कि इसको क्या पसंद है, इसको जो पसंद है वो काम में इसको लगा दो। फिर एक बार वो उस काम में लग गई, मशगूल हो गई, अभी जो आयतें हमने पढ़ी थी मशगूल की, तो दुनिया में हम इन कामों में मशगूल हो जाते हैं जिसको हम एंजॉय करते हैं, और फिर इसी वजह से सिराते मुस्तकीम से हट जाते हैं। तो एक मोमिन हमेशा अलर्ट रहता है। अब अगर ये हमारे खून के अंदर दौड़ रहा है तो अब इससे बचेंगे कैसे? कैसे बचेंगे? कौन सी दुआ सिखाई गई हमको? बेस्ट, वेरी गुड, बेस्ट दुआ हमको पढ़नी है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही हम ये पढ़ते हैं तो शैतान भाग जाता है। अल्लाह ताला का नाम हमने ले लिया, क्योंकि शैतान किसी से भी नहीं डरता सिवाय अल्लाह के नाम के। हमने बिस्मिल्लाह पढ़ ली, शैतान भाग गया। हमने आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया, ही कैन नॉट स्टैंड। इसका मतलब क्या होता है, जरा कोई बताएगा मुझे? आऊज़ु बिल्लाह का मतलब जल्दी बता दो। खदीजा, आऊज़ु बिल्लाह का मतलब बताओ। मैं पनाह मांगती हूँ। बस खत्म? जी पूरा अच्छा जी। मैंने क्या मैं बोली? पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैताने मरदूद से। हाँ, आऊज़ु बिल्लाह में भी तो अल्लाह आया ना बाबा, अगर मिनश शैतानिर रजीम नहीं बोल। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैताने मरदूद से। यस, दैट मीन्स या अल्लाह तू मुझे प्रोटेक्ट कर ले, तू मुझे अपनी पनाह में, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी में ले ले इस शैतान से, शैतान से मुझे बचा ले। जैसे ही हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं तो शैतान किसी के बस में नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो एट वंस अल्लाह ताला के प्रोटेक्शन में मैं आ जाती हूँ और शैतान भाग जाता, खत्म। तो और कोई रास्ता नहीं है शैतान से बचने का, फिनिश। उसके सामने आप ना कोई तलवार, ना आप कोई अदर वेपन यूज कर सकते हो सिवाय अपनी जबान, अपने ईमान के। आपकी जबान से पूरे ईमान के साथ आपको ये पढ़ना है। एक और शैतान से हिफाजत की दुआ हमें यहाँ मिलती है, जो स्क्रीन पर है, सुबह शाम हम पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीमी मिनश शैतानिर रजीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में आती हूँ, जो अल्लाह समी है, सुनने वाला है, अल अलीम है, सब कुछ जानने वाला है। तो हम शैतान के शर से महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शैतान कितनी मेहनत करता है, अदुव्वुम मुबीन है ना, खुला दुश्मन है। कितनी कितनी मेहनत करता है वो हमारे खिलाफ, बताओ? 24/7, 24 घंटे वो हमारे खिलाफ दुश्मन है। 24 घंटे वो इस फिराक में है कि कब मैं इसको बहकाऊं, कहाँ से इसकी कमजोरी मेरे हाथ में आ जाए, आज मैं इससे किस तरीके से गुनाह करा लूं। 24 घंटे वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए है, हमारे अंदर ही है, और वो कहीं ना कहीं हमें फिसला देता है। अल्लाह अकबर। देखिए यहाँ पर जब हम सोते हैं ना, तो हम समझते हैं मैं सो गई ना, अभी तो क्या सो गई। जैसे हम सोते हैं तो शैतान को अब क्या मिल गया, एक ऐसा विक्टिम जो तो होश हवास में ही नहीं है, अब तो पूरे कब्जे में है ना उसके हम। तो फिर वो क्या करता है बताओ? किसी को पता है वो 3 गिरोह बांधता है? जी हाँ बाजी। जी, तीन तीन गिरह लगाता है जब हम सो जाते हैं। हाँ, फिर जब 3 हम नॉट्स। हाँ,
जब हम सोकर फिर उठते क्या? हैं और जब दुआ पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं तो पहली गिरा खुलती है, जब वुजू करते हैं तो दूसरी गिरा खुलती है, और जब नमाज पढ़ लेते हैं तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। वेरी गुड। तो रात में वो हमारे ऊपर 3 हथकड़ियां, 3 गिरह बांधता है, यानी समझो 3 लॉक लगा देता है हमारे ऊपर, ताकि हम उठे ही ना। अभी जो मोमिन बंदा होता है वो फजर में उठता है, तो जैसे ही फजर में उठता है वो शुरू हो जाता है, वो बोलते हैं सो जा ना थोड़ी देर, अभी टाइम है, सो जा। जो हम सो गए तो फिर क्या हो गया, सनराइज ही हो गया, गई फजर। अच्छा, फिर अगर हम उठे भी तो फिर बोलता है कि अच्छा, वो हमको, हम उठ के बैठते हैं ना तो एक बार फिर से ट्राई करता है कि हम लोग फिर से वापिस लुढ़क जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर हम दुआ पढ़ ले पहले ही उठते, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अब पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या हो गया, सारा अल्लाह का जिक्र हो गया। अब नहीं आ सकता वो आपके पास। फिर आप जल्दी से खड़े हो जाए और वजू बना लीजिए। सेकंड नॉट उसका सेकंड वो भी हट गया, उसका ताला खुल गया कि वजू ही बना लिए, फिर भी वो कोशिश करता है जब तक कि हम नमाज पढ़ ना ले, तब वो तीसरी नॉट खुलती है। तो ये है शैतान के हमारे ऊपर वार। कैसा वो, बाप रे बाप, और क्या ताकत है उसके अंदर कि हमारे ऊपर वो बॉसिंग करते रहता है। उसको ये पावर कौन देता है कि वो हमारे ऊपर बॉसिंग करे? हम ही तो देते हैं उसको ये पावर। जितना हम अल्लाह के जिक्र से दूर रहते हैं उतना हम उसको पावर देते हैं। अगर हम पूरा दिन में एक बार भी औजुबिल्ला ना बोले तो हमने बना लिया उसको अपना बॉस, और हमने कर ली उसकी इबादत। बना लिया ना उसको अपना बॉस, अपना मालिक, उसको पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि अल्लाह का नाम ही नहीं लिया, अल्लाह का जिक्र ही नहीं किया। तो फिर वो उसने क्या किया, पूरे कब्जे में ही ले लिया हमको। अब हम बन गए उसके बंदे, उसके चेले। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। अच्छा, अभी ये वाली हदीस देखिए, स्क्रीन पर है, सुनन निसाई की रिवायत है। सना आप पढ़ लो जल्दी से। सना की आवाज नहीं आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्हेन एनी ऑफ यू वेक्स अप फ्रॉम स्लीप, जब तुम में से कोई नींद से बेदार हो, then let him sniff water in his nose and blow it out 3 times. Why? Because shaitan spends the night on his nose, inside his nose. Allahu Akbar. तो सुबह उठे और जब हम वजू बनाते हैं ना तो 3 मर्तबा अपने नाक में अच्छे से पानी चढ़ाए और उसको झटके, क्योंकि शैतान हमारे नथनों में रहता है रात भर। अल्लाहु अकबर। So you are breathing in shaitan. So breathe it out, sniff it out, ताकि हम उससे महफूज रह सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना एहसान है कि उसने हमें क्या क्या बता दिया। शैतान हमारा दुश्मन है ये भी बता दिया। दूसरा क्या बता दिया, उसकी इबादत ना करो ये भी बता दिया। तीसरा क्या, किसकी इबादत करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। अगर हम शिर्क करते हैं तो वो भी क्या हो गया, शैतान की इबादत हो गई। उसके बाद उससे बचने का बेस्ट एंटीडोट क्या है, बेस्ट हिफाजत ताउज है और अल्लाह का जिक्र। ये जो म्यूजिक है, घंटियां बजती है, ये क्या है? देखिए जरा, सही मुस्लिम की रिवायत है, चांद आंटी पढ़ लीजिए प्लीज। जी, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेल्स आर द फ्लूट्स ऑफ द शैतान। क्या मतलब है? घंटियां, घंटियां क्या है? शैतान की बांसुरी है।
वो शैतान का म्यूजिक है। तो ये जो घंटियां बजती रहती है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे उससे, तो ये सब शैतान की इबादत है, और उस तरीके से शैतान हमें उसे एंजॉय कराने लगता है। आजकल हम लोग घंटियां नहीं बजाते, लेकिन क्या बजाते? म्यूजिक। और म्यूजिक कानों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सुरीला लगता है। एंड हाउ यू फील डिजायर्ड and you enjoy and you are lost, and this is how you are distracted from the right path. तो म्यूजिक शैतान का हथियार है, और वो हमें उसके जरिए भी सीधे रास्ते से बहकाता है, भटकाता है। अल्लाह अकबर। अभी जो हमने बात की थी कि शैतान, हाँ ये अभी हमने बात किए थे ना कि आदम अलैहिस्सलाम ने से गलती हुई उनके ख्वाहिश की वजह से, लेकिन उन्होंने माफी मांगी, उनको माफी मिल गई। इब्लीस ने गलती की अपने तकब्बुर की वजह से, जानबूझकर, तो ही वॉज कर्स्ड। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें किससे बचना है? प्राइड, तकब्बुर, एरोगेंस। अल्लाह अकबर। ये हम लोग इतना क्यों पढ़ रहे हैं शैतान के बारे में? क्यों पढ़ रहे हैं इतना हम शैतान के बारे में? क्योंकि ये जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए हमें इसके बारे में जितना स्टडी करना है, जितना करेंगे उतना कम है, और जितना करेंगे उतना उससे बचेंगे। ये देखिए, ये पढ़ लीजिए जरा जल्दी से सुरैया। हदीस में मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियाँ बीवी में झगड़ा करवाना शैतान का सबसे पसंदीदा काम है। सही मुस्लिम। एग्जैक्टली। हम जानते हैं ना कि शैतान जो है ना अपना तख्त पानी पर रखता है, और उसका वहां पर पूरा कोट लगता है, और शैतान के सारे चेले चपाटे वो सारे उसके कोर्ट में, उसके हुजूर में खड़े रहते हैं, और एक एक आकर कहता है कि अपनी अपनी अचीवमेंट, कि आज मैंने ये किया, इसको बहकाया, उसको बहकाया, इससे गुनाह करवाया। तो शैतान क्या कहता है? तूने कुछ भी नहीं किया, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं था। फिर एक कहता है कि आज मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा लगाया, तो फिर शैतान क्या करता है उसके साथ? उसको क्राउन पिलाता है बाजी, अपना ताज पिलाता है। उसको पहले अपने पास बुलाता है, उसकी तारीफ करता है, उसको गले से लगा लेता है, और उसको शाबाशी देता है, और फिर अपना उसके सर पे ताज पहनाता है, क्राउन पहनाता है कि तूने बेस्ट काम किया, तूने सबसे अच्छा काम किया कि तूने शौहर और बीवी के बीच झगड़ा लगाया। अभी आज से हम क्या करेंगे? शैतान को जीतने देंगे? नहीं, शैतान को जीतने देना बेटर है कि हस्बैंड को जीतने देना बेटर? हस्बैंड को। हाँ, तो हम लोग क्यों नहीं अपने हस्बैंड को जीतने दे? वैसे भी ये हमारे सर का ताज है ना, हमारा हस्बैंड। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वो कव्वाम है, उसको अल्लाह ने एक दर्जा ज्यादा दिया है। और अगर जो औरत अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती है, उससे झगड़ा नहीं करती, उससे प्यार करती है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जिस भी हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राजी हो, तो फिर क्या है उसके लिए? कंप्लीट करो हदीस। वो जो जन्नत औरत, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जा सकती है। वो ये वाली हदीस का वो आंसर नहीं है सुरैया? उसके लिए जन्नत वाजिब है बाजी। यस, उसके लिए जन्नत वाजिब है जो इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राजी हो। तो अब हमको किसको जिताना है? अगर हम अपने शौहर को जीतने देते हैं, अगर वो कोई बात करे और हम झगड़ा ना करे और उनको जीतने दे, तो देखिए कितने कितने फायदे हमारे। नंबर 1 कि हमारा शौहर हमसे राजी है। नंबर 2, हमने झगड़ा नहीं किया तो हमने शैतान को जीतने नहीं दिया, ताज पहनने नहीं दिया।
नंबर 3, शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत बढ़ गई, हमारे घर में सुकून आ गया। नंबर 4, अगर मेरी मौत हो गई इस हाल में तो मुझे जन्नत मिल गई। नंबर 5, हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ देने वाले के लिए क्या है? क्या है? जन्नत के बीचों बीच घर। गारंटीड, है ना? तो इंशाल्लाह आज से क्या करेंगे हम सब? झगड़ा छोड़ देंगे। हाँ, हस्बैंड को जीतने देंगे। ओके, चाहे अच्छा अगर वो गलत बात भी कर रहे हैं तो भी जीतने दो ना, थोड़ी देर बाद में। अब वो गुस्सा तो है ही नहीं, झगड़ा तो हुआ ही नहीं, थोड़ी देर बाद जब अच्छा माहौल है, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है, तब आप चाहिए तो वो बात पे डिस्कस कर सकते हो आराम से, इजंट इट? ना झगड़ा हुआ, ना गुस्सा हुआ, ना शैतान आया, और ना वो जीता। ठीक है, अब आगे देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। इबादत करो सिर्फ मेरी। अब क्या है ये? अल्लाह की सिर्फ इबादत करने का मतलब क्या है? 24 घंटा नमाज, रोजा, तस्बीह, यही करना है? तब हम शैतान से बचेंगे क्या? शैतान से बचने के लिए ताउज इनफ है? इबादत का मतलब क्या है? सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? हमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं रहना है। जब भी हमको ध्यान आए कि हम अल्लाह का जिक्र नहीं किया है, अल्लाह का जिक्र कर लेना ताकि शैतान हमसे दूर हो जाए। अच्छा, सुरैया? बाकी हमको अल्लाह ने जो जी, वर्शिप प्लस इबादत। वेरी गुड, वर्शिप प्लस ओबीडियंस। क्या मतलब है इबादत का? वर्शिप प्लस ओबीडियंस, कि जितनी नमाज का हुक्म है उतना ही पढ़ेंगे, जिक्र कितना करेंगे? जितना हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी के पूरा दिन अल्लाह के हर हुक्म, अल्लाह की हर बात को हमें मानना है इंशाल्लाह। 24 घंटे में वो शैतान के जैसा कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी है। कौन सी एक नाफरमानी हमें शैतान बना दे? वी डोंट नो। कौन सी एक नाफरमानी जहन्नम में ले जाए? वी डोंट नो। तो अब देखिए, इबादत के लिए एक बहुत अच्छा सा क्लिप है, मैं प्ले करती हूँ आप लोगों के साथ, गौर से देखिए। I don't know why this is not playing. हाँ, here it is. आवाज आ रही है? नहीं। ओके, 1 minute. अभी आएगी इंशाल्लाह। जस्ट अब आ रही है? नहीं आ रही है। अरे अल्लाह अकबर, this is a beautiful message. Some glitch, we'll solve it inshallah soon. Because I'm wearing my earphones, this is happening, so I have disconnected it, and inshallah अब बताना। अब आई? नहीं नहीं आ नहीं, रही बाजी। अभी भी नहीं आई? नहीं। बाजी मुझे सेंड कर दो। हाँ, मैं तुमको सेंड करती हूँ। This was about इबादत, so very important to play, क्योंकि कभी कभी मेरी बात नहीं समझ में आती है, कोई क्लिप का इफेक्ट हो जाता है। यस सुरैया, आप प्ले कर देना। तो हम डिस्कस कर रहे थे इबादत क्या है। इबादत सिर्फ रोजा, नमाज, ज़कात और तस्बीह का नाम नहीं है। 24 घंटे हमें एक तो शैतान से बचना है,
नंबर 2, 24 घंटे अगर हम अल्लाह की बात माने और हर अमल कैसे करें, सुन्नत के मुताबिक करें, तो क्या होगा फिर? वो क्या हो जाएगी? हमारी इबादत हो जाएगी। मेरा सोना भी इबादत, मेरा खाना भी इबादत। यस, बाबा जी मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। आपकी मामा कहती है कि आप नमाज पढ़ने जाते हो, सारा दिन उधर ही बैठे रहते हो, क्या मसला है, क्या करते हो? मैं इबादत करता हूँ बाबा जी। बेटा इबादत के लिए तो अल्लाह तादाद फरिश्ते रखे हुए बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के साथ साथ जिंदगी ऐसे गुजारने का हुक्म दिया है कि वो इबादत बन जाए। क्या मैं गलत करता हूँ बाबा जी? नहीं बेटा गलत तो नहीं करते, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कंपनी में कोई मुलाजिम रखूं किसी खास काम के लिए, वो काम ना करे लेकिन मेरे सामने बैठ के मेरी तारीफें करता रहे, सर आप बहुत अच्छे हैं, सर आप बहुत नेक हैं, तो क्या ख्याल मुझे अच्छा लगेगा? नहीं बाबा जी। क्या अच्छा लगेगा मुझे? कि जिस काम के लिए रखा है वो करे। एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला ने हमें किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है, इसलिए हमें इंसान बनाया है। तो हमने ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है। सबसे बड़ी मिसाल हमारी अंबिया की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है, उसवा हसना, कि उन्होंने ज़िंदगी ऐसे गुजारी, इबादतें भी की, सारे लेन देन किए, रिश्ते निभाए, कारोबार किए, नाप तोल लेन देन, हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है। जी बाबा। तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सारा दिन मस्जिद में गुजारना है, हमें ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है कि हमारी ज़िंदगी इबादत बन जाए। बेटा कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो जिंदगी कैसे गुजारनी है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप लोग इसके बारे में रिफ्लेक्शन देना बाद में। अभी मुझे ये बताइए कि क्या मेरा खाना इबादत है? हाँ, मेरा खाना भी इबादत है। अगर वो खाना कैसा है? हलाल हो, हलाल हो, तय्यब हो, पाकीज़ा हो, तो वो खाना भी इबादत है। और वो खाना मैं किस नियत से खाती हूँ कि अल्लाह मुझे इससे ऐसी ताकत दे कि फिर मैं तेरा हर हुक्म पूरा कर सकूं। अगर हम खाने में इसराफ करते हैं, ज्यादा खा लेते हैं या कम खा लेते हैं, तो या तो कमजोर हो जाते हैं या ज्यादा खा के फिर सुस्त हो जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं रहते। तो ये क्या है? वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन द इबादत, हर काम में। फिर इसी तरह बिजनेस करना, माल कमाना, ये भी इबादत है। रात में सोना, वो भी इबादत है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सो रहे हैं तो इबादत मिस हो रही है। फजर आपकी मिस हो गई तो क्या हो गया? फिर सोना इबादत है? नहीं। अगर कम सो रहे हैं तो फिर बीमार हो रहे हैं तो वो भी क्या हो गया? आपकी इबादत, आपकी जिंदगी पर उसका असर हो रहा है। यहाँ तक कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप, अभी जो आया था ना कि जन्नत में शौहर और बीवी तकिए लगा के आराम से they will be enjoying their companionship, तो दुनिया में शौहर और बीवी का रिश्ता वो क्या है? वो भी इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो साहबा इकराम तो बहुत सरप्राइज हुए। साहबा इकराम ने पूछे कि अच्छा, शौहर और बीवी का एक दूसरे के साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो वो भी इबादत है, उनकी हमबिस्तरी इबादत? तो फरमाया हाँ, क्यों? उसके ऑपोजिट से चेक करो। उसके ऑपोजिट से चेक करेंगे कि अगर आप वही काम अपने बीवी या अपने शौहर के अलावा किसी और के साथ कर रहे हो तो वो क्या हो गया? वो हराम हो गया ना। तो फिर उसका ऑपोजिट क्या है? उसका ऑपोजिट नेकी है, इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी पूरी जिंदगी इबादत बन सकती है, बस हमें शैतान से बचना है और सीधे रास्ते पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए आगे बढ़ना है इंशाल्लाह, ताकि हम उससे, शैतान के शर से बच सके। एक और हदीस शेयर करनी थी आपके साथ। हो गया। एनीवेज इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे। अब आगे की जो आयत है उस पे तो हम नेक्स्ट क्लास में ही पहुंचेंगे कल।
दैट इज 62 से, और ये आप लोग का आज होमवर्क था। तो अब आप लोग मुझे बताना ये जो कुछ मैंने बताया इसके अलावा अगर आपके पास कोई टिप्स है, कोई होमवर्क आपने किया हुआ है और ये वीडियो से आपने क्या सीखा। अल्लाह ताला हम सब की शैतान से हिफाजत करे, हमें महफूज रखे और हम उसके झांसे में ना आ सके। सो अ मोमिन हैज टू बी वेरी अलर्ट। इसलिए हमने डिटेल में आज फिर शैतान के बारे में स्टडी किया, क्योंकि अल्लाह ने हमें फरमाया वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।